گرمی میں اضافے کے ساتھ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا۔ مظفر گڑھ کے مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے سوئی گیس غائب۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی بالکل، مظفر گڑھ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں گزشتہ ایک سال سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مظفر گڑھ شہر میں صبح 9 بجے گیس بند ہو جاتی ہے اور دوپہر کو 1 بجے آتی ہے اور شام کے اوقات میں بھی 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے گھریلو خواتین کو مشکلات کا سامنا، ہوٹل مالکان کو، شہریوں کو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، کیا صورت حال ہے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیصل بھٹی۔ ریکویسٹ چھوٹی سی یہ ہے کہ صبح 9 بجے گیس آتی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ کسٹمر ہمارا بیٹھا ہوا چلا جاتا ہے۔ لکڑیاں کی کاسٹ زیادہ ہے، LPG کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ لیبر کا انویسٹمنٹ نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ سارے دن ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ LP وجہ جو سلنڈر والے ہیں ہمارے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان آج کا بل جو ہے وہ 4000 5000 روپے دینا ہوتا ہے۔ تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ پلیز سوئی گیس کے معاملات میں توجہ کی جائے۔ کون کون سے علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے یہ بتائیے گا سر، یہ اس ٹائم میں مظفر گڑھ شہر کے اندر کھڑا ہوں۔ یہاں تو پرجوش طور پہ گیس ہے ہی نہیں۔ پرجوش پہ جنگ موڑ پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ پھاٹک پہ گیس نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ آگے چوک ہے یادگار چوک، وہاں گیس نہیں ہے۔ خاصی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور شہریوں کا یہی کہ انتظامیہ مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ عامر ڈوگر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں میک کو حکام کی نااہلی کی انتہا۔ کوٹ چھوٹا میں بجلی کے پول ٹرانسفارمر زمین بوس ہونے کا معاملہ۔ مختلف علاقوں میں 5 روز گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا محمد سلیم سے۔ جی بالکل، میں اس وقت جھوک اترا روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر گزشتہ دنوں تیز آندھی اور طوفانی بارش کے باعث جو ہے بجلی کے پول جو ہے ٹرانسفارمر سمیت زمین بوس ہونے کی وجہ سے یہاں پر پچھلے 5 روز سے جو ہے بسم اللہ ٹاؤن، جھوک اترا روڈ، ماشاءاللہ ٹاؤن، چھجڑے والا سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو یہاں پر جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا، پچھلے 5 روز سے بجلی کی بندش کی وجہ سے کیا مشکلات آپ کو؟ بڑی مشکلات ہے، نلکے کا نہیں کہیں موٹر باندھے پانی کیڈو سی کپڑے دھونے واسطے، روٹی پکاؤن واسطے بڑی مشکل ہے، پانی بھارو یا سردار جمال خان کو ساری ریکویسٹ ہے مہربانی کرے بجلی بحال کراوے ساری۔ جی کیا سو بجلی جو کہنی تھوڑی بجلی سر ہے کیا نہ پانی ہے گھر چ سمجھے، رات دا مچھرن سمن دے بال بیمارن سمجھے، اے نظام ہے۔ اچھا وہ ٹرانسفارمر تے لگ گئے، ہن کیوں نہیں بال دینی پئی؟ او دن کے کھمبا بھی پر وہ کریک تھیا کھڑے، نواں وٹاونا کھمبا، وہ کھمبے دی وجہ تو ہی واسطے بجلی بند تھی کھڑن۔ بجلی والے باقی کام کر گئے، ٹرانسفارمر رکھ گئے، صرف ہی وجہ تو کھمبا چینج تھی سی تو بجلی لگ سی تھوڑی۔ ہن کھمبا کوئی مہربانی کرو کہ سارے واسطے کھمبا آوے تے والا تھا ایو تھی وے۔ جی بالکل، پچھلے 5 روز سے جو ہے اس علاقے میں بجلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ شدید جو ہے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ٹرانسفارمر اور پول شہری زمین بھی بوس شدید پریشان ہے۔ بہت شکریہ رانا محمد سلیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیرہ طارق سے۔ جی، گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر جو گھریلو صارفین ہیں یا کچن میں کھانا بنانے والی خواتین ہیں، ان کو گیس کی بے جا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے خاصی مشکل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ہم نظام آباد کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر صبح، دوپہر اور رات کے اوقات میں اکثر گیس جو ہے وہ بند رہتی ہے۔ یہاں بھی اس وقت کچن کی صورتحال یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے کہ گیس آ جائے تو کھانا بنے، لیکن چولہا یہاں پر بند پڑا ہوا ہے۔ کیا کہیں گی؟ جی گیس کا یہ حال ہے، صبح 10 بجے گیس جاتا ہے، ٹھیک ہے، 2 بجے آتا ہے۔ اس دوران بچے مطلب آج کل تو اسکول سے ویسے بھی چھٹیاں ہیں، تو جیسے ہی لیٹ اٹھتے ہیں 10 بجے تو ادھر سے جب ہم ناشتہ بنانے لگتے ہیں تو گیس نہیں ہوتا۔ 2 بجے کے بعد پھر بچوں نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے، اس کے بعد 2 بجے جب گیس آتا ہے ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 3 بجے پھر گیس چلا جاتا ہے، 5 بجے آتا ہے۔ رات کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، 9:30 جاتا ہے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے۔ بل وغیرہ ایسے ہے کہ بل اتنا بھیج دیتے ہیں، اس میں میڈم میٹر کا کرایہ بھی آج کل لگا ہوا ہے، 500 روپے ہمیں میٹر کا رینٹ دینا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک غریب بندہ جب اس کا بل 200 یا 300 آئے گا، اگر اس کو اس پہ 500 روپے جو میٹر کا کرایہ دینا پڑے گا تو ہمیں کیا فائدہ ہے گیس کا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ پھر ہم نہیں ہونی چاہیے، اس سے بہتر پھر ہم سلنڈر نہ یوز کر لیں۔ جی، گیس کے بلوں پر جو میٹر رینٹ کا اضافی ٹیکس عوام پر ڈالا گیا ہے، خواتین اس سے بھی پریشان دکھائی دیتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ
दिन के औकात में या सुबह के औकात में गैस ना होने की वजह से खाना बनाने। तारीख अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुसलसल बढ़ती कीमतों ने नान भाइयों के हाथ खड़े करा दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से एक बार फिर गैस की कीमतों के बढ़ाने के हवाले से जो है वो ऐलान किया गया है। सूरत हाल ये है कि गैस है नहीं और उसकी कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसके असरात जो है वो रोजमर्रा जिंदगी पर मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं। बिलखसूस होटल इंडस्ट्री जो है वो इससे शदीद मुतासिर है। महंगी LPG के बायस इस्तेमाल करने के बायस जो है जो होटल इंडस्ट्री के आउटपुट से उनकी कीमतें जो है वो उनमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब मौजूद है एक तंदूर पर। आज ही जो है रोटियां लगा रहे हैं। कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं आप? ज़्यादा LPG इस्तेमाल हो रही है। ये तो क्या नाम आती है घंटे 2 घंटे के लिए, वो भी हमारा काम ख़त्म हो जाता है उस टाइम आती है। फिर उसके बाद हमें महंगी LPG इस्तेमाल करनी पड़ती है। हर चीज़ का गाहक कहते हैं कि रियायत करके दो, चीज़ फलां सस्ती हो गई, क्या सस्ती हो गई? हर चीज़ हमें कहना रेट ही कहना नहीं मिल रहा तो हम क्या कहना सस्ती देंगे। तो जो सुई गैस जो है उसका जो है मीटर आपका लगा हुआ है, उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो किस तरीके से उसको देख रहे हैं? और जो है लोड शेडिंग का क्या दौरानिया होता है? बस लोड शेडिंग का उनका कहना दौरानिया यह है कि सुबह 6 बजे कहना 6:30 बजे आती है गैस, 7 बजे एतवार वाले दिन तो 7 बजे 7:30 बजे आती है और ठीक 8:30 बजे 9 बजे चली जाती है। फिर कहना मेरी बात सुनो, वो आएगी 11:30 12 बजे आएगी, 12 बजे के बाद फिर वो कहना चली जाएगी कि नहीं 1 बजे या 1:30 बजे चली जाती है। फिर उसके बाद शाम को आएगी 6 साढ़े 6 बजे, 7:30 बजे 8 बजे तक फिर वो चली जाएगी। तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये रोटियां पकाने के लिए? आपका तंदूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है इस हवाले से जो गैस की लोड शेडिंग और उसकी मुसलसल कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो होटल इंडस्ट्री LPG इस्तेमाल कर रही है, जिसमें जो और बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। आपको बताएं, लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। PMA और YDA की जानिब से 5वें रोज भी हड़ताल। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। बिल्कुल, मुल्तान ईस्टर हॉस्पिटल की बात करें तो लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वाक़े के बाद आज 5वां रोज गुजर गया है, लेकिन अभी तक आउटडोर वार्ड में हड़ताल का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल के आउटडोर वार्ड के बारे में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पर ताले लगाए गए हैं और यहाँ पर किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया जा रहा। रोजाना यहाँ पर 6000 से 7000 पेशेंट आते थे, लेकिन अब इसको डॉक्टर्स की जानिब से ताले लगाए गए हैं और मुसलसल 5 रोज से आउटडोर वार्ड की हड़ताल की जा रही है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना है, जो लोग आ रहे हैं उन्हें परेशानी के सामने। एक खातून मौजूद है। हम आप बताइएगा, यहाँ पे आए हैं, चेकअप वगैरह नहीं हुआ? बंद है ये? जी हाँ। तो क्या कहते हैं? हड़ताल है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, कोटदू भी जो आए हैं। कोटदू से आए हैं चेकअप के लिए। आज आए थे? जी हाँ। तो आप वापस जा रहे हैं, कोई चेकअप नहीं हुआ? को खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं जन भी। जी इंतजार में खड़े हैं कि शायद हड़ताल खत्म हो जाए, लेकिन हड़ताल डॉक्टर अपनी जिद पर मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? आप कहाँ से हैं? हम मतीताल रोड से आए। मतीताल रोड से आए हैं। यहाँ पर आए, हड़ताल चल रही है, इलाज नहीं हुआ? 4 दिन हो गए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, नहीं दवाई मिल रही और बंद है। ठीक है, आपने किस पेशेंट है आप? मैं ब्लड कैंसर का मरीज हूँ। ब्लड कैंसर के ये पेशेंट है, वो ये कह रहे हैं 4 दिन से आ रहे हैं लेकिन उनका चेकअप नहीं हो सका हड़ताल की वजह से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और जहाँ पे खातून मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा आप बताइएगा, चेकअप नहीं हुआ आज? नहीं यार, बच्ची का गले का मसला है और चेकअप नहीं हुआ। बस्ती मुल्क से आए हम। तो यहाँ हड़ताल चल रही है? हड़ताल चल रही है, हम तो प्रॉब्लम में फंस गए, ना आंधड़ का किराया ना वेंदड़ का किराया। हाल है। और यहाँ पर जो मरीज हैं, आपने गुफ्तगू जानी, वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि बिलाल नियाज़ी अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। सरगोदा में भी डॉक्टरों की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज परेशान। हड़ताल के बायस आउटडोर समेत दीगर शोबे 3 रोज से बंद। हुकूमत फिलफोर डॉक्टर सिक्योरिटी बिल मंजूर करे, डॉक्टर्स का मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आपको अपडेट करते चले, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टरों पर तशद्दुद का मामला। सरगोदा में भी डॉक्टरों की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज परेशान। आपको बताएं, लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। डॉक्टरों की जानिब से हड़ताल का सिलसिला 5वें रोज भी जारी। डॉक्टर्स के मामलात मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। जिला भर में आज भी तमाम ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद।
YDA बहावलपुर की जानिब से बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर। डॉक्टर्स का सिक्योरिटी बिल और दीगर मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान है। आपको अपडेट करते चले, डॉक्टर्स के मामलात मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। जिला भर में आज भी तमाम OPDs मुकम्मल तौर पर बंद हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज परेशान। कोट अदू में आउटडोर बंद होने से मरीज वापस लौटने पर मजबूर। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर तशद्दुद के मामले पर जो है पूरे पंजाब के डॉक्टर ने हड़ताल की हुई है, जिसको आज चौथा रोज जारी है। लेकिन हुकूमत और डॉक्टर्स की आपसी मामलात के पेश नज़र जो गरीब तबके की आवाम है, मरीज हैं, वो जलील ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ हॉस्पिटल में मरीज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कौन से इलाके से आए हैं, कितने दिन हो गए हैं इनको आते हुए और आगे इनको क्या कहा जा रहा है। जी सर बताइएगा। हम देहरादून पना से आए हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। 4 दिन हो रहे हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ इलाज बंद हो चुका है। तो लिहाजा आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मरीजों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और डॉक्टर की लड़ाई के दौरान जो आवाम है वो सख्त परेशान है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर डॉक्टरों का जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए ताकि गरीब आवाम आसानी से अपना इलाज करवा सके। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये देहरादून पनाह से आए हुए थे। ये भी मुसलसल 4 दिन से आ रहे हैं। कुछ इलाज और अल्ट्रासाउंड के सिलसिले में इनको मुसलसल स्ट्राइक की वजह से इनको वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत और डॉक्टर के जो मामलात हैं उसको शफकत मलाना बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें जहानिया से। जहानिया रेलवे फाटक का तामीराती काम 1 माह के बाद भी नामुकम्मल। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार। शहरियों का शदीद एहतजाज। मजीद जानते हैं अमजद हुसैन बट्टर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के एक रेलवे फाटक पर मौजूद हूँ। ये रेलवे फाटक 25 दिन से ज़ेर तमीर है और जिसकी वजह से जो शहरी है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ भी इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज भी हैं और आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। बताइएगा कि रेलवे फाटक तमीर हो रहा है, क्या कहेंगे? भाईजान, ये पुल 14 तो जहानिया तक सड़क है। ये रेलवे फाटक 28 तरीक तक 15 दिन ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ 5 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ 12 ਚੱਕ ਚ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਲਾਉ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਡਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। बच्चे लेट हो जाते हैं जिसकी वजह तो पेपर टाइम पे नहीं दे पाया जाता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि जो शहरी है वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि आपका घर नजदीक है, रेलवे फाटक पोल 14 से जहानिया आना होता है और हमें काफी रास्ता जो मुतबादल रास्ता है वो भी टूट फूट का शिकार है और इतनी तकलीफ में आना पड़ता है जिसका कोई इंतहा नहीं। और जो इन्होंने बनाया हुआ है ये दिखा दे कैमरे वाला कि वो दोबारा उखाड़ के दोबारा बना रहा है। अभी इन्होंने तामीर किया और अभी इन्हें इससे तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ये सारा आवाम को जलील कर रहे हैं। इसकी जितनी जल्दी हो सके हकाम से हमारी अपील है कि इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की जाए। मेहरबानी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, जो शहरी है वो रेलवे फाटक की बंदिश की वजह से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इन्होंने यहाँ एहतजाज भी किया है। इनका ये कहना है कि रेलवे फाटक का काम सिर्फ 5 या 6 दिन का था और इन्होंने 15 दिन का बोर्ड लगाया था, लेकिन आज 25 से 26 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो काम जूं का तू है और मजीद 1 महीना भी लग सकता है। इन्होंने कहा है कि जो शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, 1 महीना लग सकता है। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बटर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं लिया शहर के तरक्याती मंसूबे नामुकम्मल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पुल अंगड़ा से कमोकामिल फाटक तक बनने वाली सड़क पर पत्थर डालने के बाद काम रोक दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरफराज से।
कुछ लिया शहर में तरक्याती मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके, जिससे शहरी और ताजर जो सरापा एहतजाज है। मैं मौजूद हूँ पुलंगड़ा पर। पुलंगड़ा से मुकामिल फाटक को जाने जो सड़क है, ये काफ़ी अरसे से इस पर जो ठेकेदार उसने पत्थर डालने के बाद काम बंद कर दिया, जिस वजह से अब जो ताजर हजरात है वो परेशानी का शिकार है। अगर बात है तो इस सड़क से जहाँ पर रोजाना की तादाद में हज़ारों तादाद में सैकड़ों मोटरसाइकिल गाड़ियाँ और गुजरती है, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क बनाने के लिए इकदाम नहीं किए गए, जिस वजह से ताजर सरापा एहतजाज किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन से बात करते हैं। वजह रसो कितनी मुश्किल थी पे सड़क? बिल्कुल बड़े मुश्किल है, तंग है बड़े। 3 साल तकरीबन 2.5 साल थी गए ना, समझ बिल्कुल झील होता है पे। क्या मुतालबा है? हाथ से मुतालबा मेहरबानी करो, रोड बनाओ, बिल्कुल कारोबार को नहीं, सारे मार्केट खाली गा की को नहीं सारे को। वजह तुसा क्या सो कितनी परेशानी थी? हादसे नहीं थी, पत्थर सर बहुत मुश्किलात है, कई दफा हादसे थे, रोड सारा टूट फूट का शिकार है, काफी सारे मसाइल हैं, सेवरे के मसाइल हैं, मोटरसाइकिल वाले बड़े परेशान हैं। वजह तुसा दसो सड़क टूटी पे पत्थर उड़दे होसन लगदे होसन, कितनी मुश्किल थी? बहुत मुश्किल थी नहीं, ये मोटरसाइकिल वाले काफी ठहर होने, बच्चे परेशान थे, स्कूल के बच्चे आने वाले बड़ी परेशानी थी लोगों को। मेहरबानी करके थे और कुछ मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो सड़क है इसको फौरन बनाया जाए। चाहे तो तुसा दसो इसमें गुजरते हुए बाल उधरते कितने परेशान तंग दिन बाबा आज सारा दिन तंग थी, रोड है, साइकिल मोटर वाले साइकिल वाले सारा गड्डी ट्रैफिक बहुत चलती है, बस जरा जरा मुसीबत भुगते अपने साहब को पता है, मेहरबानी थी वने रोड बना वने। और जब कुछ मुजाहिरीन जो मुतालबा कर रहे हैं कि पुलंगड़ा से मुकामिल फाटक जो सड़क फौरी तौर बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। सूरत हाल ये है कि सड़क पूरी तौर पर सड़क को बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं मैपको का खराब और जलने वाले मीटर्स की तब्दीली के लिए अहम इकदाम। ऑपरेशन सर्कलों को 1914 सिंगल फेज मीटर्स फराहम कर दिए गए हैं। मुल्तान सर्कल को तब्दील करने के लिए 130 मीटर्स फराहम किए गए हैं। डीजी खान सर्कल को 153, बिहाड़ी को 175 मीटर्स फराहम किए गए हैं। बहावलपुर सर्कल को 308, साहिवाल सर्कल को 182 मीटर्स फराहम, रहीम यार खान को 292, मुजफ्फरगढ़ सर्कल को 339 मीटर्स फराहम, बहावल नगर सर्कल को 266 और खानेवाल को 69 सिंगल फेज मीटर्स फराहम कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करते चले, मैपको का खराब और जलने वाले मीटर्स की तब्दीली के लिए अहम इकदाम है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं 9 मई को तोड़फोड़ के वाकयात का मामला, अदालत का दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के इकदाम को चैलेंज करने का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं महार इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे 9 मई में मुल्तान में होने वाले तोड़ फोड़ वाकयात, हंगामा राई, और इसमें मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात का अंदराज किया गया, जिसमें थाना कैंट में 3 जो है ये मुकदमात दर्ज किए गए तोड़ फोड़ के हवाले से, जिसमें दहशत गर्दी की दफात जो है वो नाफिज कर दी गई थी, लगा दी गई थी, जिसमें 869 और 870 इन 2 दफात में तकरीबन 200 के लगभग जो लोग हैं वो शनाख्त परेड पे इस वक्त जेलों में हैं, जबकि मजमूई तौर पर 800 से ज़्यादा जो नामजद और नामालूम मुलजमान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर जो दहशत गर्दी अदालत ने ATC जो उसको ख़त्म कर दी, ATC की दफात, और उनको इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में इस केस को भिजवा दिया, जिसके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूटर ATC अरशद लगारी ने जो है बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त, एक अपील बनाकर जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी पंजाब की जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जो है वो भेजी और वहाँ से इजाज़त तलब की है। जैसे ही वहाँ से इजाज़त आएगी हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर यह अपील दायर की जाएगी, और उस अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो इंसदाद दहशत गर्दी की दफात लगाई गई थी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सरकारी अमलाक को तोड़ फोड़ करने समेत जो दीगर संगीन नोयत के जो इल्ज़ामात थे मुलजमान पर, और उसको उसमें जो दहशत गर्दी की दफात थी उसको अट्रैक्ट रहना चाहिए था, उसको लागू रहना चाहिए था, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए था, जो कि जज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने ख़त्म कर दिया है। बाकायदा तौर पर इजाज़त जैसे ही मिलेगी उसके बाद हाई कोर्ट में ये अपील जो है वो दायर की जाएगी, और उसके बाद फैसला सामने आएगा कि आया अपील दायर की जाएगी। बहुत शुक्रिया महार इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आज नैब में पेशी। आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी में उस्मान बुज़दार 10वीं मरतबा तलब। नैब की जानिब से बारहा तलबी पर उस्मान बुज़दार सिर्फ 2 मरतबा पेश हुए। नैब तलबी के नोटिस उस्मान बुज़दार की रिहाइश गाहों पर अरसाल किए गए हैं। नैब 9 अरब से ज़ायद मालियत के असासाजात बनाने पर तहकीकात कर रहा है। उस्मान बुज़दार ने ताहाल असासाजात डिक्लेरेशन प्रोफार्मा पर तफसीलात फराहम नहीं की हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मसूद भट्ट। जी बताइएगा, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आज नैब में पेशी है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
जी साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान गुलजार को आमदन शिकायत के एहसास में लाहौर में आज 10वीं मरतबा बुलाया है। 10 कॉलम नोटिस में सिर्फ 2 मरतबा जवाब करने की है और जो उनको 30 अवेलेबल में खाना किया गया है सिर्फ 4 सवाल की जवाब अभी तक टाइट नहीं है। इस बात के खिलाफ जनाब ने आमदन में था जो मुबैना ठेकेदारों को नवाजा गया 2018-2022 के दरमियान जब वज़ीर-ए-आला पंजाब को उसका केस खोल दिया गया है, जबकि जितने भी तकर्रुर तबादले किए गए ग्रेड वगैरह के डिप्टी अफसरान के असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स की असामियाँ शामिल हैं, इस पर भी खानदार से सवाल किए जाएंगे। खानदार को आज 11 बजे किया गया था, हाल वो नैब टीम के रूबरू पेश नहीं हुए और अब अगर वो पेश होते हैं तो उनके तमाम तर जो सवाल थे उनके जवाब टीम हासिल करेगी। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, पारा चंडार में शहीद असातिज़ा के लिए मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर कुलखानी का इनेकाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मुल्तान की जानिब से किया गया। रहनुमा MWM का क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं उन अब्बास से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, जहां मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से जो पारा चनार के जो उस्ताद कराम थे जिन्हें बेदर्दी से शहीद किया गया था, उन्हें नजरिया अकीदत पेश करने के लिए कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया और उसके साथ साथ एहतजाज भी किया गया। तो हमें ये बताइएगा, जिस तरह से काफ़ी अरसा हो गया उन्हें शहीद किया गया, आज एहतजाज आपने यहाँ पर कैसे किया? ये एहतजाज का सिलसिला उस वक्त से जारी है। आपके इल्म में होगा कि पिछले दिनों भी, पिछले जुमे को भी पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाया गया था। हम खामोश थे कि शायद पुरअमन तरीके से हमारे मुतालबात माने जाएंगे। शायद हुकूमत जिस तरह अपने इदारों के ज़रिए से बाकी मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है, इसी तरह हमारे मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन जब ना हमारी FIR काटी गई, ना उन शुहदा के वारसों को शहीद डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत उनके मामला तय किए गए, तो फिर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कायद अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने यह ऐलान किया कि हम इससे इंशाअल्लाह ये एहतजाजी अलामती एहतजाज शुरू करेंगे और इसको फिर इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़े एहतजाजों की तरफ ले जाएंगे। आप बताइएगा कि जिस तरह से मुतालबात आप कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कबूल नहीं होते, आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते, तो आगे क्या अमल है? हमने हमेशा पुरअमन अंदाज में और आइनी अंदाज में एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया है। अभी फ़िलहाल ये अलामती एहतजाज मौजूद हुआ है, यहाँ कुरान खानी की गई है। एक तरफ हुकूमत को मुतनब्बे कराया गया है कि वो हमारे मुतालबात को पूरा करे। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम एहतजाज को पूरे पाकिस्तान में बढ़ाएंगे, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, आइनी कानूनी अंदाज के अंदर अपने मुतालबात को आगे लेके चलेंगे। हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उन जो मुतालबात को आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा। DG PDM में इमरान कुरैशी का फ्लड फाइटिंग तैयारियों पर ब्रीफिंग। सैलाब में इस्तेमाल करने वाली मशीनरी और आलात की चेकिंग को यकीनी बनाने की हिदायत है। आपको बताएं, अंजुमन ताजिरान के नुमाइंदों की DPO मुजफ्फरगढ़ से मुलाकात में ताजिरों के मसाइल और शहर सिक्योरिटी पर बातचीत। DPO की ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। ताजिर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चले, अंजुमन ताजिरान के नुमाइंदों की DPO मुजफ्फरगढ़ से मुलाकात। अब आपको बताएं, पंजाब भर में कल से तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक बंद रहेंगे। इस हवाले से जानते हैं बिलाल शाकिर से। पंजाब भर की तरह लुडन में भी तमाम सरकारी स्कूल्स जो हैं वो कल से बंद हो रहे हैं और आज स्कूल में जो है वो आखिरी दिन है। कल 6 जून से लेके 20 अगस्त तक तमाम जो सरकारी स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे। मैं इस वक्त लुडन के एक स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। हमारे साथ एक टीचर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि छुट्टियों के हवाले से बच्चों को आपने काम जो है वो भी जारी कर दिया होगा और जो महकमा एजुकेशन है उसकी जानिब से क्या अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं, ये भी बताइए। बिल्कुल सर, महकमा एजुकेशन की तरफ से यही अहकामात हैं कि आपने बच्चों को छुट्टियों का काम जो है वो राइट करके देना है। तो हमने बाकायदा ये रिटन फॉर्म में ये अपने हाथ से लिखा है और बाकायदा उनको बच्चों को तकसीम कर दिया गया है। और दूसरा महकमा की तरफ से मैं ये हिदायत थी कि आप स्कूलों में अक्सर जो चोरी के जो वाक़यात हैं वो छुट्टियों में बहुत ज़्यादा होते हैं कि सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, मोटर पंप्स लगे हुए हैं,
तो हमने छुट्टियों में इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना है। तो हमने महकमा के हिसाब से, जो महकमा ने हमें बताया कि आप एक सर्टिफिकेट इशू करें स्कूल की तरफ से कि हमने उनकी हिफाजत के इक़दाम जो है वो कर दिए हैं। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट भी मैंने राइट किया है, ये भी मैंने डिपार्टमेंट को जमा करवाना है कि मैंने ये सोलर प्लेट्स और सोलर पैनल्स वो उतरवा कर किसी ज़िम्मेदार शख्स के घर रखवा दिए हैं, और पंखे वगैरह बिजली के जो पंप्स हैं उनको भी उतरवा कर हमने रखवा दिया गया है। जी, जैसा कि आपने बच्चों की ज़बानी सुना कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे और बहुत शुक्रिया बिलाल शाकिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।